रिपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। Then you have lubrication system, you have mechatronics, so these are known as five technology platforms to SKF. Four types of maintenance practices. I have seen that kind of. This was easy because Ravinder has taken a lot of time. बेकार भी कैमरा है। From Taxico, 4 types of maintenances are corrective, preventive, and proactive. Yeah. Excellent. So, as I said, corrective, preventive, predictive, and proactive. What is the prefix used for SKF energy efficient bearings? First time. First. Excellent. Sir, E2 bearings use होगा क्या होगा फॉर्म में? ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू। अनु के नंबर नोट कर लीजिएगा साहब। So this is energy efficient bearings. SKF grease lubricated housing designation starts as Yes. SOFN. No. SNL is given to answer. SNL is given the right answer. SNL series. Clap for it. Mr. Myself, Abhishek Srivastava, Heidelberg Cement. From Heidelberg Cement. Myself, Abhishek Srivastava, from Heidelberg Cement, Jhansi. SKF vibration pen is capable of measuring velocity, G value, and what else? Sir, you have got one, so let's make it right. Temperature. Excellent, excellent one. Give it to me. वीडियो वाला कहाँ रुका था सर? Metal OD seals starts with designation. Metal OD metallic oxide diameter. Yes. Material बता दीजिए. Name 2 types of elastomer materials. I will put it this question. Name 2 types of elastomer materials which are used for making seals. That is a very simple one. Wait. Yes. और neoprene. Excellent. Excellent. I don't know why you are afraid. Nitrate or neoprene? From James College. I hope this is the last one. Yeah. This is the last question. So we'll see who is the lucky person. Name 4 SKF product. I hope it's the easiest one. Weld, chain. Yes. So sir, all our team are here. So maybe we can have one-to-one interaction, open session. So we are here to take your questions, and then we'll start with our dinner. You can take questions from there. Is there any questions? वाइब्रेशन पेन से जो हम रीडिंग लेते हैं ना, वाइब्रेशन एकदम एक्यूरेट नहीं आता, जबकि आपका जो वाइब्रेशन एनालाइजर है उससे भी करेक्ट आता है। दूसरा प्रॉब्लम, वाइब्रेशन पेन हर जगह नहीं यूज कर पाता। सपोज कोई कपलिंग के पास में घड़ी लगी हुई है, वहां पे हाथ नहीं पहुंच पाता है, वो मुश्किल हो जाती है। और एक्यूरेसी भी नहीं है उसमें वाइब्रेशन पेन का जो जी डिफरेंट। अच्छा सर, आपकी बात एकदम सही है। इसका रीजन ये है कि जब आप वाइब्रेशन पेन सिंपल इसको यूज करते हैं तो इसका सेंसर जो आगे लगा हुआ है, तो आप हाथ से होल्ड करके रीडिंग ले रहे हैं। हाथ से जब ले रहे हैं तो कभी भी आपकी रिजिडिटी नहीं आएगी। उससे क्या होता है, आपका हैंड का जो
Yes. We normally advise our customers along with vibration pen they should go for accelerometer. और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि मान लीजिए पॉइंट अप्रोचेबल नहीं है, उसके लिए भी आप ये एक्सटर्नल सेंसर यूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे लगा दीजिए परमानेंटली केबल, उसको ऐसे पॉइंट पे ले लीजिए जहाँ से आप इजीली रीडिंग ले सकते हैं। ऐसा भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। Any other question? Yes, sir. The ball bearing about 4 feet diameter. 4 feet. 4 feet. जनरली देखा गया है कि ये काउंटर और इनर रिंग अलग से बनाकर I am not able to hear. 4 feet diameter. Hello. 4 feet diameter. के लिए अलग से एक इनर आउटर रिंग और टॉप और बॉटम रिंग बना करके जिधर उसमें बाल्स लगा दी जाती है। क्या एसकेएफ ये मैन्युफैक्चर करता है? आप ये कह रहे हैं एक बेरिंग है जिसके अंदर इनर रिंग तो है ही और बॉटम रिंग एक है और टॉप रिंग है। तीन रिंग्स हैं। चार रिंग। आई थिंक ये स्क्रू रिंग की बात नहीं कर रहे हैं। बाल नहीं, बट ये कौन सी एप्लीकेशन है? सपोज देयर आर some thinners. There is thinners. thickness. ये मैं एप्लीकेशन अपना कर रहा हूँ। Thickness मतलब कहाँ मतलब you are from which? Hindustan Door Levers are in the supplying such bearings. जनरल बेरिंग्स की तो बात नहीं कर रहे हैं, वाइट मेटल बेरिंग्स है। No, नहीं। these are hardened rings, splitted, one cut, only one cut in ID. I haven't heard about it. They are not the method. Because any idea what? I think we'll have to see the drawing. Drawing or some photograph, maybe we will see. There are many products which, the awareness is not there. For example, we are into hydrostatic shoe bearings. So, we'll have to actually get back to you. Agar drawing or photograph is quite, then we will address it. Drawing dimensional review. Because we have started one facility at Pune, no? So we are doing a lot of customized solutions for our customers. That feasibility. सर एक काफी बड़ा बेरिंग है हमारे पास रोलर प्रेस का। हम जर्मन से डायरेक्ट मंगाते हैं हमको। वो जनरली टूट जाता है। उसका ये आपका जो रीमैनिंग आप बता रहे हो उसमें कुछ है सॉल्यूशन उसका? Yes, रीमैनिंग का मतलब एक प्री इंस्पेक्शन होता है पहले। We need to see कि बेरिंग की कंडीशन क्या है, whether it can be remade or not. आफ्टर मतलब टूटने के बाद कुछ सॉल्यूशन है उसका? टूटने के बाद तो उसका नहीं हो सकता, मतलब it's a type of preventive maintenance backup plan. तो बेरिंग का जैसे क्लियरेंस बढ़ जाता है after service period, after some time of अभी कुछ बात चल रही थी ना कि वो रिकंडीशनिंग बेरिंग का reconditioning basically for large size of bearings. लार्ज साइज बेरिंग है हमारा, ये 241/560 का है। सर लेकिन आप जैसे बोलते हैं टूट गया, टूटने के बाद कुछ कर सकते हैं, no that is not the procedure. It is like a preventive maintenance बैकअप प्लान है। जैसे आपका बेरिंग एक मेंटेनेंस शटडाउन में निकला, बेरिंग को आप इंस्पेक्ट कराते हैं तो हल्के फुल्के मार्क्स रहते हैं, मतलब हल्के से आपके कहीं मार्क्स आ गए, so which can be removed off by doing small polishing, small painting and that type of stuff. एक्चुअली क्लियरेंस ज्यादा हो जाता है फिर है कुछ बेरिंग उसका? सर उसमें भी दूसरा रहता है रोलर रिप्लेसमेंट का, बट क्लियरेंस अगर बढ़ जाता है तो we are at this point in time we are not doing any activity of material deposition. मटेरियल रिमूवल का हम करते हैं। जैसे अपने बेरिंग में काफी स्टॉक्स में बेरिंग्स पड़े होते हैं, तो उसमें हल्के फुल्के 5 साल 7 साल से यूज नहीं हुआ तो हल्के मार्क्स आ गए, कुछ निक्स आ गए, तो उसको हम साफ करेंगे। नहीं अभी हमारा एक बेरिंग है रोलर नश का ही है, उसका क्लियरेंस बढ़ गया, उसका वाइब्रेशन बढ़ गया, अभी कोई सॉल्यूशन है उसका कि हम लगे उसको चेंज करना? रोलर रिप्लेसमेंट इज द सॉल्यूशन। वो तो काफी टिपिकल काम वो काफी टिपिकल काम होगा। सो अभी क्लियरेंस बढ़ने के बाद कोई सॉल्यूशन आप लगे में कर सकते हो जो बिकॉज़ क्लियरेंस बेरिंग इज हैविंग फोर क्लियरेंस एंड आई डोंट थिंक और रीमैन उसमें सर ऐसा होता है कि हम पहले चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्लियरेंस क्या है। वो तो एक अलग चीज है कि पहले चेक नहीं किया, सपोज अभी बढ़ गया, क्लियरेंस इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, देन हाउ कैन यू उसमें भी आई लगेगी यहाँ पर रिप्लेसमेंट
हल्का फुल्का होगा तो आप ग्राइंडिंग पॉलिशिंग करके क्लियर कर सकते हो। तो अभी हम सॉल्यूशन फैक्ट्री में जो अपना एक्टिविटी करते हैं दैट इज बेसिकली मटेरियल रिमूवल, नॉट द मटेरियल डिपोजिशन। जैसे क्लियरेंस बढ़ गया इंग्लिश, यू नीड टू डिपोजिट द मटेरियल, so clearance is into microns and something like that. तो इसमें एक ऑप्शन ये रहता है रोलर रिप्लेसमेंट। बेयरिंग 80 लाख 90 लाख का होता है तो कस्टमर कहता है यार 40-45% में अगर रोलर रिप्लेसमेंट हो जाता है क्योंकि इट इज एज गुड एज द न्यू वन। तो वैसा है। फिर भी द सॉल्यूशन इज नेक्स्ट टाइम जब आप उसको मेंटेनेंस ओवरऑल में लें जो बेयरिंग क्लियरेंस के जोन में ही है तो उसकी आप लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं बाय डूइंग अ प्रॉपर रीमैन। तो हल्की के मार्क्स होंगे क्लियरेंस अंदर लिमिट है उसको आप हमारी सॉल्यूशन फैक्ट्री भेज के तो उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी बाय डूइंग यू नो रोलर पॉलिशिंग और वो करके तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ नहीं तो अभी जो जर्मन से डायरेक्ट बेयरिंग आ रहा है उसमें भी कराना पड़ेगा। नहीं नया बेयरिंग में नहीं मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए आप निकालने के बाद निकाल रहे हो आप उसको 2-3 साल में एक बार उसको मेंटेनेंस के प्रोसेस के लिए खोलते होगे साफ करते होगे तो आवर कैपेबिलिटी एट पुणे इज यू नो हाईटेक तो वहां पे रोलर पॉलिशिंग रोलर ग्राइंडिंग तो नए मतलब इस टाइप के बेयरिंग की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इट इज लाइक यू नो अ बैकअप टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्लान वेयर यू कैन एक्सटेंड द सर्विस। सो दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि क्लियरेंस बढ़ गया तो कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, we have 2 more gifts. So what we were thinking कि 2 लोगों को और भी गिफ्ट दे सकते हैं. So you will ask the question. One question is मीडियम जूम नहीं कर सकते अरविंद सर ने मेरा किया उसमें काफी सारे मेरे मुंह रखा है। बात की थी। तो somebody can name at least 5 maintenance tools. 5. Please raise your hand. 5 maintenance tools SKF जो बनाता है। मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले में भी रखे हुए हैं कोई भी 5 बताइए। 5 मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स वो भी लगा हुआ है। अब दिख रहा है। अरे अभी पीछे वाले कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं। सर प्रोग्राम कैसा लगा आपको? मतलब अच्छा लगा कि नहीं? नहीं तो आप ही आंसर देंगे। गिव द माइक। नो गिव द माइक। कैसा लगा प्रोग्राम? ठीक था। कुछ मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स का अलग है। 5 मेंटेनेंस प्रोडक्ट नहीं दे ट्राई सर नहीं अटेम्प्ट करेंगे। अरे सर ऐसे कैसे करेंगे? आपका भी फोन आया था। Everybody wants to attend? सर लर्निंग सिस्टम है, लर्निंग सिस्टम है हमारा बेयरिंग कूलर है और सेल्स का है। मेंटेनेंस का मतलब सबसे प्रॉब्लम तो मेरे को सॉफ्ट लर्निंग सिस्टम लगा। शाफ्ट अलाइनमेंट टूल 1 2 दूसरा बताइए। आज कूलर बेयरिंग कूलर दूसरा तीसरा और किस तरफ दे हीटर इंडक्शन हीटर 3 ऑयल हीटिंग का है। चार्जेस और ऑयल हीटर 3 हुआ सर 2 और ग्रीस गन है वो दैट्स अ टूल। ग्रीस गन हो गया 4 ठीक है। 5वां एक बता दीजिए बस। एक और वाइब्रेशन पेन वाइब्रेशन पेन बड़ी मुश्किल ये तो सहयोग से दिस इज द लास्ट सहयोग से अरविंदर ने जब प्रेजेंटेशन शुरू किया था तो एक सॉल्यूशन प्रोडक्ट की बात की थी। उसने वो ये दिखाया था लोकेटिंग नॉन लोकेटिंग करके कुछ तो भी दिखाया था। ठीक है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग और कोई एक टाइप का नया टाइप का बेयरिंग दिखाया था और उसके बारे में बात की थी कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेयरिंग सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग नीडल रोलर बेयरिंग एंड स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। कैन यू नेम दैट बेयरिंग? सर फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म? Compact allied roller bearing. Correct. Okay. So any more questions from your side or we can मैंने आपसे पूछा था कि वो ओवर टाइट करते हैं या लूज करते हैं वो स्पेक्ट्रम हमारा किस टाइप का बनेगा या स्पेक्ट्रम अगर हमारे पास नहीं
उसको हम जज कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन रीडिंग। टाइट क्या करेंगे? जैसे हमारी स्विंग बेयरिंग है, वाइट मेटल बेयरिंग है, वो हमने टाइट कर दिया और या उसको मैंने लूज कर दिया, वाइब्रेशन हमारे डिफर होंगे कि सेम होंगे? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा कि ये जो टूल और सेंसर मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने बातें की, वो इंटीग्रेशन बेयरिंग की बात है। जो आप जनरल बेयरिंग बात कर रहे हैं, जनरल बेयरिंग का नॉर्मली ये सेंसर यूज नहीं होता। उसके लिए हम यूज करते हैं तो नहीं लेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्रोब्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपका एक ऊपरी पार्ट शाफ्ट हो गया या बेयरिंग के साथ, और एक उसका हाउसिंग हो गया जो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी हाउसिंग के अंदर वो प्रोब लगता है, वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। जब आप अभी करनी है ना, सारे वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है कि अंदर शाफ्ट